How are you all? Today our new lesson will start. The topic is atom and element. What is atom? All matter consists of tiny particles called atom. Atom is made up of even smaller units or subatomic particles called electron, proton and neutron. These subatomic particles basically make the structure of an atom. Protons and neutrons are present in a centrally located nucleus which is surrounded by a cloud of electrons moving around the nucleus. Protons are positively charged while neutrons have no charge and the electrons carry negative charge. The neutrons of electrons and protons are always equal in an atom. That is called the atomic number of that atom. For example, the atomic number of carbon is 6 because it has 6 protons in its nucleus. What is atomic mass? The sum of protons and neutrons in the nucleus of an atom is called its atomic mass or mass number. It is denoted by capital A. For example, the mass number of carbon is 12 because it has 6 protons and 6 neutrons in the nucleus. Mass number A is equal to number of protons plus number of neutrons. Or we can also say that number of neutrons is equal to mass number A minus atomic number Z. What is element? Element is a pure substance that has only one type of atoms in it. Periodic table. It is a table made by scientist Dmitry Ivanovich Mendeleev. It comprises all of 118 known elements. The elements in periodic table are arranged according to their atomic number and properties into vertical columns called groups and horizontal rows called periods. We can get a lot of information about an element by looking at its position in the periodic table. You can see the periodic table here. There are 8 groups. The elements in the same group has the same properties. Understand? How the electrons are distributed in the shells. We know that the electrons revolve around the nucleus of an atom. The path of movement of electrons around the nucleus are called shells. Electrons are distributed in different shells. Shells are also called as energy levels. These shells are labeled as K, L, M, N, O, P, Q, etc. K is the first shell that is nearest to the nucleus. We can calculate the number of electrons in a shell using the formula number of electrons in a shell is equal to 2 n ki power square. N is the number of shell. You can see here that in K shell we will put the value of shell number in the place of n. So for the K shell, 2 multiplied by 1 ki power square, 1 ones are 1 multiplied by 2 is equal to 2. So in the K shell there is the capacity of 2 electrons. In the next second shell we will put the value 2 in the place of n and we will calculate the numbers. The square of 2 is 4, 2 2s are 4 and multiplied by 2 is equal to 8. So in the L shell the number of electrons are 8. Similarly in the M shell, the third one shell, we will put the value of n, that is 3. So 3 3s are 9 multiplied by 2 is equal to 18 and the capacity of electrons in the third shell is 18. Understand? Look, here is the
Picture of an atom. In the center there is a positively charged because the neutrons has no charge and protons have positively charge. So nucleus has positive charge and the electrons around it has negative charge. The first shell there is shown is K shell and the second one is L. K shell has 2 electrons and the L shell has 8 electrons. Understand how we put the electrons in the shells? Here are some elements. Atomic structure shown in the figure. First 18 elements are shown here. You can see the structure of first 18 elements and their electronic configuration. Understand? Why do atoms combine? Atoms combine with other atoms, but they stop reacting with other atoms, become stable when their outermost shell is complete, having 8 electrons, or they have only one shell, K shell, with 2 electrons. क्या होता है कि एटम के जो शेल्स होते हैं, जैसे K शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है. अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, उसके बाद नेक्स्ट शेल जो आउटर मोस्ट शेल होगा, अगर L शेल आउटर मोस्ट शेल है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कंप्लीट है, जैसे L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है. अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो एलिमेंट स्टेबल पोजीशन में होता है. और अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो शेल अनस्टेबल पोजीशन में होता है और कोशिश करता है कि अपने शेल की कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करके स्टेबल पोजीशन में आ जाए. फर्स्ट शेल के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन्स. अगर कंप्लीट नहीं होंगे तो क्या होगा? एटम अनस्टेबल पोजीशन में होगा. अपने शेल की कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए एटम किसी और दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाता है, रिएक्ट करता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके स्टेबल पोजीशन में आने की कोशिश करता है. फॉर दिस पर्पज एन एटम कैन लूज, gain or share its electron with other atoms. For example, 2 hydrogen atoms combine to form a hydrogen molecule H2 by sharing of electrons. जैसा कि हाइड्रोजन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है और K शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्डिंग बनाते हैं और मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टेबल कंडीशन में आके सरवाइव करते हैं. समझ में आ रहा है? व्हाट इज़ वैलेंसी? वैलेंसी इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंबाइन विद द अदर एटम. Valency can also be defined as follows. The number of electrons that an atom wants to lose, gain or share is called its valency. For example, sodium atom Na loses 1 electron. Its valency is 1. Chlorine atom F gains 1 electron. Its valency is 1. Hydrogen shares 1 electron. Its valency is also 1. Copper, magnesium, oxygen have valency number 2. The valency of aluminum and nitrogen is 3. The valency of carbon atom is 4. वैलेंसी क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद. अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कंप्लीट नहीं है आउटर मोस्ट शेल में
तो जाहिर है कि एटम जो है स्टेबल होने के लिए क्या कोशिश करेगा, उस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि ऑक्सीजन की का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है ना, तो फर्स्ट के शेल में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। उसके बाद एल शेल में बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। अब एल शेल में मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश रह जाती है, ठीक है ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन का एटम कोशिश करेगा कि वो गेन कर ले, ताकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो सके और वो स्टेबल कंडीशन में आ सके। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हुई, 2, जैसे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हुई, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसको स्टेबल होने के लिए 1 मोर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। उसके पास सिर्फ एक के शेल होता है। समझ में आ रही है? इसी तरह कार्बन के एटम में क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी 6 होती है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे के शेल में और उसके बाद एल शेल में जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद रह जाएंगे उसमें 4 की गुंजाइश। अब कार्बन के पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को गिव अप कर दे, लूज़ कर दे, या वो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन कर ले, शेयर कर ले और अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करके स्टेबल फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। तो कार्बन की वैलेंसी क्या हुई, 4। समझ में आ रही है? आयंस, एन एटम विथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एन आयन। क्या होगा जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लॉस करेगा स्टेबल कंडीशन में आने के लिए, तो वो आयोनिक फॉर्म में आ जाएगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। कैसे आ जाएगा चार्ज, हमने पढ़ा था कि एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो कि इक्वल होती है उसको शो करता है, ठीक है ना। अब प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ना तो वो लूज़ होते हैं और ना वो गेन होते हैं, वो तो जितने होते हैं उतने ही रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो कि मूव कर रहे होते हैं अपने शेल के अंदर, वो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, या तो वो एटम उसको लूज़ कर देता है या गेन कर लेता है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स तो उतने ही होंगे उस एटम के अंदर। जब मज़ीद इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और वो टोटल चार्ज उस एटम के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज की वजह से वो एनाइन कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर एटम अपना कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है स्टेबल पोजीशन में आने के लिए, तो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रह जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स तो उतने ही होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज कम रह जाएगा। तो टोटल चार्ज जो उस पूरे एटम पे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसकी वजह से वो कैटाइन कहलाएगा। समझ आ रही है? आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड। दिस बॉन्ड बिटवीन टू आयंस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। अब ये जो चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो कैटाइंस और एनाइंस होते हैं, ये इनमें एक दूसरे के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स के दरमियान अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ये कंबाइन हो जाते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। दिस बॉन्ड बिटवीन टू आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। दिस इज वीकर बॉन्ड with low melting and low boiling points. For example, in sodium chloride, chlorine has 7 electrons in its outermost shell and need 1 electron to make a complete configuration, while sodium has 1 electron in its outermost shell and needs 7 electrons to get in stable position. So these both ions attract
to share electrons and ionic bond is formed between them. समझ में आ रही है? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि सोडियम एक कैटाइन है और क्लोराइड एक एनाइन है। दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे और कंपाउंड बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। द बॉन्ड इज़ वीकर बिकॉज it is ionic bond and it can be easily broken with high temperature. The second bond is covalent bond. A covalent bond is a chemical bond that is made by sharing of pairs of electrons between two or more atoms and forms molecules. It is a stronger bond with high melting and high boiling points. For example, water molecules is made by two hydrogen atoms and one oxygen atom. The bond between them is covalent bond. अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता, इसमें मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं। ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और इसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जैसा कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में होता है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं और बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आयन के फॉर्म में नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? इसके एटम्स आयन के फॉर्म में नहीं होते हैं, इसके एटम्स हमेशा मॉलिक्यूल बना के कोवेलेंट बॉन्डिंग की सूरत में होते हैं मौजूद। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का पूरा पेयर शेयर हो रहा होता है। समझ में आ रही है ये? किसी को कोई प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकता है। ओके क्लास, नाउ द लेक्चर इज़ ओवर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।